am Ayushi Sharma and you are watching me on my YouTube channel that is Sharma Girl. So जैसा कि आपने thumbnail देख ही लिया होगा, in this video we are gonna discussing about the judicial review, that is न्यायिक पुनरीक्षा. In this video I will use both the languages Hindi and English, that is everyone will be able to understand it in a clear language. ये बड़ी अच्छी बात कही आप. So this video is gonna be very interesting because I will explain you with a story. So let's get started. I know the story might seem funny to everyone, but yeah, at the end of the story you will be able to understand the concept of judicial review very clearly. So this is my assurance to you all. So let's start. So in my childhood, my mother one day prepared Maggie for me and my younger brother, and he distributed not in the equal proportion, but he gave more Maggie to my younger brother. So when I was young, so I was dissatisfied with this decision. So I know this is the violation of my fundamental right, that is the right of equality. So I went to my father and told all the story that happened. So now my father look after this matter and then declared that this right, the decision made by mother is nullified and void because this is violating the individual's fundamental right. So yeah, if you have heard or listened this story very carefully, now the judicial review is clear. So now I will explain you in the official terms. I will use official terms in regards to this story. So first of all, I will tell you the definition of the judicial review. So I have write down here, the judicial review is the power of the judiciary to examine the constitutionality of the legislative enactments and executive orders of both the central and the state government. So let's start. होता है judicial review, judiciary की power होती है. Judiciary means जितने भी legal body है किसी भी country की. It includes all the courts and all the judges of any country. So उनकी ये पावर होती है कि वो चेकआउट करेंगे कि जो सेंट्रल या फिर स्टेट किसी ने भी लॉ बनाए हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव और लॉ पॉलिसी, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो नहीं है. अगर वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं तो जुडिशरी के पास ये राइट है कि वो जुडिशियल रिव्यू के तहत उसको चेकआउट करें. और अगर जुडिशरी को लगता है कि ये जो राइट है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है या फंडामेंटल को वायलेट कर रहा है या कौन कौन सी कंडीशंस हैं, मैं फर्दर वीडियो में आई विल एक्सप्लेन यू. सो जो भी कंडीशंस हैं एंड अगर उसको लगता है कि ये गलत है तो वो उसको वॉइड और नलिफाई कर देगा. और कोई भी सेंटर चाहे स्टेट गवर्नमेंट के पास कोई भी पावर नहीं होगी कि वो उसको फॉलो ना करे. सो जुडिशरी ही सुप्रीम है कंट्री की, जैसे कि आपको पता है. So in 1951, 24 April, during the Kesavananda Bharati case, so the basic structure, the judicial review propounded as a basic structure. That means it cannot be amended by anybody. This is the supreme and this is the basic structure. And we have adopted the judicial review from the USA. In 1803 में USA में जो कि फेमस केस है मैकबरी वर्सेस मेडिसन बाय दी चीफ जस्टिस जॉन मार्शल, उन्होंने इसको प्रपाउंड किया था जुडिशियल रिव्यू के कॉन्सेप्ट को. हालांकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जब हमारा स्टार्ट हुआ था, इनेक्ट हुआ था स्टार्टिंग में आफ्टर द इंडिपेंडेंस, उसमें पहले से ही जुडिशियल रिव्यू था. अब बात आती है जुडिशियल रिव्यू. जुडिशियल रिव्यू कहीं भी एक्सप्लिसिटली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है. हालांकि इम्प्लिसिटली इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रोविजंस हैं, आर्टिकल्स की प्रोविजंस हैं, जिसमें हमें ये पता चलता है कि जुडिशियल रिव्यू की पावर हमारी कंट्री में जुडिशरी के पास है. सो आइए इन आर्टिकल्स प्रोविजंस को जान लेते हैं. सो आइए वी विल डिस्कस सम ऑफ द प्रोविजंस. सो सबसे पहले आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो रिट इशू कर सकते हैं. आर्टिकल 226 के पास हाई कोर्ट के पास पावर है कि वो रिट इशू कर सकते हैं. आई होप आपको रिट के बारे में पता होगा, एंड इफ यू डोंट नो अबाउट रिट एंड यू वांट टू नो, डू लेट मी टू नो इन द कमेंट सेक्शन. आई विल मेक अनदर वीडियो रिगार्ड्स दिस. सेकंड पॉइंट है सेंट्रल और स्टेट के बीच में रिलेशंस और इंटर स्टेट के बीच में रिलेशन. अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है तो जुडिशरी ही सुप्रीम होती है, वो ही हेल्प करती है इन डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने में. थर्ड पॉइंट ये हो सकता है कि प्रेसिडेंट जब भी कोई भी एडवाइस चाहिए होती है तो वो सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है, जुडिशरी के पास जाता है एडवाइस लेने के लिए. तो ये सारी चीज़ें हमें जुडिशियल रिव्यू की पावर बताती हैं कि उनके पास जुडिशियल पावर है, वो लॉज को देखते हैं एंड फिर उससे रिलेटेड अपने डिसीजंस देते हैं.
सो जुडिशियल रिव्यू को 3 कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया है। सबसे पहले अमेंडेबिलिटी। सो अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट और कोई भी कोर्ट के पास ये पावर है जुडिशियल रिव्यू की कि वो उसको देखे, और अगर वो अमेंडमेंट में कुछ भी प्रॉब्लम है, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, तो वो उसको नलीफाई कर सकता है। सेकेंड है लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द पार्लियामेंट और एनी लेजिस्लेटिव बॉडी। अगर कोई भी पॉलिसी मेकिंग में ऐसा होता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन या फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है, तो वो उसको नलीफाई कर सकता है। अब थर्ड केस आती है एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव की। अगर आप कोई भी ऑर्डर्स पास करते हो और अगर वो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है या फिर जो प्रोविजंस के अगेंस्ट है, आई विल टेल यू फर्दर इन दिस वीडियो, तो उसको भी नलीफाई कर दिया जा सकता है। सो नाउ अब बात कर लेते हैं कि जुडिशियल रिव्यू की इम्पोर्टेंस क्या है। सो इम्पोर्टेंस भी 3 आती है। सबसे पहले आती है सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये बोलता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी सुप्रीमेसी है, अगर उसको बचाने के लिए जुडिशियल रिव्यू का यूज़ होगा। सेकेंड पॉइंट वो ये बोलता है कि फेडरल इक्विलिब्रियम, दैट मीन्स जो सेंटर और स्टेट के बीच में अगर डिस्प्यूट होगा तो जुडिशियल रिव्यू को हम कर सकते हैं यूज़। थर्ड वो ये बोलता है कि प्रोटेक्शन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। प्रोटेक्शन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, अगर फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन हो रहा है तो जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। हालांकि 3 ही प्रोविजंस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हैं जुडिशियल रिव्यू के रिगार्ड्स। ये बहुत ज़्यादा नैरो कॉन्सेप्ट है, जबकि यूएसए में ये बहुत ज़्यादा वाइड कॉन्सेप्ट है, और ये बहुत ज़्यादा ऐसी पॉलिसीज़ हैं जहाँ पर स्टार्ट होता है हमारा जुडिशियल रिव्यू। एंड डू यू नो यूएसए में इतना ज़्यादा पावरफुल है और इतना ज़्यादा वाइड है कि इसको सुपर लेजिस्लेशन और थर्ड लेजिस्लेशन की पावर दे दी गई है, क्योंकि ये इतना ज़्यादा वाइड है कि कोई भी लॉ बनता है तो जुडिशियल रिव्यू उसमें इनेक्ट होता है, उसमें उसका रोल होता है, वो लुक आफ्टर करता है एंड देन वो उसको बताता है कि ये जो रूल होगा या ये जो पॉलिसी होगी, लॉ होगा, ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये इनेक्ट होगा या नहीं होगा। सो एज यू नो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ना ही इतना ज़्यादा रिजिड है और ना ही फ्लेक्सिबल है, हमारा मिक्सअप है इन दोनों का। सो इसी से ही हम बात करते हैं जुडिशियल रिव्यू की। कैसे यूएसए में जुडिशियल रिव्यू को सुप्रीमेसी दी गई है, हालांकि इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में उसको एक लिमिट तक ही पावर दी गई है जुडिशियल रिव्यू को, जैसा कि मैंने आपको बताया उसके 3 ही क्लोजेज हैं। और ब्रिटेन में पार्लियामेंट को सुप्रीमेसी दी गई है, हालांकि इंडिया में पार्लियामेंट के पास भी पावर है बट वो भी लिमिटेड है। सो इंडिया में ये डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है, कंडीशन क्या है और किसके अकॉर्डिंग वो कर सकता है। सो चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो लेजिस्लेटिव हो, सबके ऊपर कुछ ना कुछ लिमिटेशंस हैं एंड दैट इज़ अ स्पेशल फीचर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हाउएवर वी ऑल नो, जैसे कि सबके पास पावर होती है उनकी लिमिटेशंस भी आ जाती हैं। सो जुडिशियल रिव्यू की लिमिटेशन के बारे में बात करते हैं। सो एज वी टॉक अबाउट द लिमिटेशन, द फर्स्ट थिंग केम इनटू आवर माइंड इज द 9th शेड्यूल। सो व्हाट इज दिस 9th शेड्यूल? लेट्स टॉक अबाउट दिस। 9th शेड्यूल के अंडर वो सारे लॉज आते हैं, चाहे वो सेंटर्स के हों चाहे वो स्टेट के हों, जो चैलेंज नहीं हो सकते कोर्ट में और जिनके लिए चाहे वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रही हों, उनको हम जुडिशियल रिव्यू के अंडर नहीं आएंगे। So yeah, that is it for today's video. I hope all the concept of judicial review I have discussed here and it is clear to you. And if you still having any doubt, do let me know in the comment section. It's open for all of you and you can even give your suggestions and the opinions in the comment section. And I will be glad to solve all your queries. Thank you.